Yes, student, today we will study about heating effect of electric current. This is such a phenomenon in which when current is allowed to pass, it is seen that heat is produced inside it. How? यहाँ पर आप देखो R is the resistor and voltmeter is connected across R in parallel to it. It is connected to X and Y point. Current is allowed to pass from the source battery. Key is closed. Current enters into the resistance and the value of current is noted down with the help of ammeter. If electric circuit is purely resistive, resistive का मतलब only resistor यहाँ होना चाहिए, and configuration of resistors only connected to battery and source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. जैसे ही स्विच ऑन करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है और ये जैसे ही करंट रेसिस्टर में इन करता है तो हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बोलते हैं। हीट इज प्रोड्यूस एंड हीट इज ए फॉर्म ऑफ डिसिपेटेड एनर्जी। डिसिपेटेड एनर्जी मतलब जितना टोटल एनर्जी वहां खर्च हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट इज utilized in devices like electric heater, electric iron, etc. अब यहाँ पर आप देखो पावर का फार्मूला से यूज करेंगे। पावर का रिलेशन कहाँ से लाएंगे? पावर इज रिलेटेड विथ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q by T. Q by T means I, total charge rating flowing through the resistor. तो V और ये I, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I, स्टेप नंबर 1. Second, amount of heat produced is H. This is a form of energy, dissipated energy, and energy is calculated with the help of work, potential difference multiplied with the charge flowing through the resistor, and potential difference is keeping as it is, and charge means current times total time of flow of charge. So VIT, this very W is nothing but the total amount of heat produced. आप इसको ध्यान में रखो, ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों एक ही है। ओम्स लॉ का यूज कर लो। बाय ओम्स लॉ, जब ओम्स लॉ यूज करोगे तो V का वैल्यू कितना होता है? I इंटू आर। आप इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ओम्स लॉ का वैल्यू को। हाँ, पुट इनटू इक्वेशन 2. By 2 and 3 you can write for amount of heat produced. क्या होगा? V के जगह पर I इंटू आर लिखेंगे, ठीक है, और I एज इट इज रहेगा, टाइम भी कीपिंग सेम for the flow of charges. We get the formula I square R times T. Yes, this is the required amount of heat produced. So according to heating effect of current, in the easy way we can prove the formula for total amount of heat equal to I square R into T. Now come to this conclusion of the heating effect of electric current. And this is discovered by Joule's, and Joule's law of heating is also known as, for the formula H equal to I square R into T. And we see here that this law implies that the amount of heat produced in the resistor or amount of heat is directly proportional to the square of the current. Means you can write in this way, symbolically you can write square of the current flowing by keeping the resistor same for the time for which the
charges are flowing or current is flowing through the resistor is also keeping constant, then heat is directly proportional to the square of the current. The second law, according to the Joules, it is amount of heat is directly proportional to the resistance for the given current. This very H directly depending on the resistance for given current, keeping current same and time for which the current is flowing in the resistor. The heat directly depending on the resistance of the conductor. Third law, the amount of heat is directly proportional to the time for which current flows through the resistor. The third point is that the amount of heat produced directly depending on the time when same current flows through the resistor. So I and R are keeping the same. Then amount of heat produced in the resistor is directly proportional to the time for which the current is allowed to flow or passing through the resistor. इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं. There is practical application of heating effect of electric current in our day-to-day life. Electric laundry iron, electric toaster, electric oven, electric kettle, and electric heaters. These are some familiar devices which is based on Joule's law of heating effect of current. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए बात करनी है. R into T. The electric heating is also used to produce light. For example, it is used in the electric bulb. Electric bulb glows due to the heating effect of current. Here, filament must retain as much of the heat generated as is possible. जो बल्ब में फिलामेंट रहता है, हाँ, वो उतना ही हीट को रिटेन करता है जितना वो जनरेट होने का संभावना होता है, जितना पॉसिबल है. So that it gets very hot, गर्म हो जाता है, and emits light. It must not melt, गलना नहीं चाहिए, at such high temperature. A strong metal with high melting point such as tungsten, which is used as the filament of the bulb, very important point. Melting point of the tungsten is 3380 degrees Celsius. It is used for making bulb filament. Why tungsten is used to make filament bulb filaments? The reason is it has high retention of the high temperature and it has high melting point, does not oxidize easily when current passes through it. Filament should be thermally isolated as much as possible. It is thermally isolated. पूरा हीट से वो आइसोलेटेड होगा, दूसरा प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा. By using insulating support, the bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases. जो बल्ब में भरी जाती है गैसेस वो इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस होती है. ये भी ध्यान में रखने का बात है. हाँ, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट इससे ज्यादा लंबा समय तक चलता है. मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट. जितना भी पावर कंज्यूम होगा फिलामेंट के द्वारा वो हीट के रूप में निकलता है. बट ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड, और उसकी छोटी सी हिस्सा जो है लाइट के रूप में रेडिएटेड होता है. अब देखिए, द फ्यूज which is used as a safety devices in the electrical circuit. It protects circuit and appliances by stopping the flow of any unduly high electrical energy. तो ये ध्यान में रखना है. The fuse is placed in the series. How fuse is used in the circuit? The fuse is always connected in series with the device. फ्यूज के अंदर में क्या होता है? It is a piece of wire made up of metal and alloy of high appropriate melting point. फ्यूज में क्या होता है? ये अलॉय होता है ज्यादातर. देखिए, एल्यूमिनियम
कॉपर, आयरन एंड लेड, ये सारे एग्जांपल्स हैं। इफ ए करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज, अगर करंट स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा अगर फ्लो करता है थ्रू द सर्किट, तो टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और क्या करता है ये, दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर को गला देता है एंड ब्रेक्स द सर्किट, और सर्किट को तोड़ देता है और हाई करंट नहीं जाने देता है। So fuse wire is usually encased in a cartridge of porcelain or similar material with metal ends. Fuses used for domestic purposes are rated as 1 एम्पियर का फ्यूज होता है, 2 एम्पियर का होता है, 3 एम्पियर का होता है, 5 एम्पियर का होता है, 10 एम्पियर का होता है। जैसा डिवाइस का रिक्वायरमेंट होता है, जैसा उसका पावर रेटिंग होगा, उस हिसाब से ये फ्यूज मार्केट में अवेलेबल होता है। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन, अगर आयरन का केस लिया जाए, विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर, जो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर को यूज करता है, खर्च करता है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, क्योंकि घर की अक्सर है 220 वोल्ट डोमेस्टिक यूज में होती है, तो करंट कितना जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 220 एम्पियर, यानी 4.54 एम्पियर विल फ्लो इन द सर्किट, and in this case 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज्ड। तो इस तरह से देखी जाती है कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर का जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, तो पावर का मतलब क्या होता है, बच्चा लोग जानता है कि पावर का मतलब रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, तो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना सेकंड में खर्च हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यह डिफिनेशन अच्छा है। पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड इन द सर्किट, ये एनर्जी है ई पर सेकेंड, टाइम से डिवाइड कर दो, ये पावर का बेसिक फार्मूला हो गया। और इसमें कुछ लाना चाहते हो एनर्जी, एनर्जी लाने के लिए वर्क लेते हो, तो वर्क बाई टाइम से भी पावर होता है, बट दिस इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और वर्क को अगर और डिसाइड करना चाहते हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा तुम्हारे पास। चार्ज बाई टाइम क्या होता है, करंट होता है। हाँ, चार्ज बाई टाइम से करंट होता है, तो V इंटू आई आ गया पावर, ये पहला स्टेप आया, इस तरह से इसको दिखाना है, ये प्रूफ हुआ यहाँ पर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ओम्स लॉ को यूज करो, ओम्स लॉ का यहाँ पर नाम लेना होगा। ओम्स लॉ कैसे लाओगे, V इक्वल टू आई इंटू आर लिखोगे द्वारा, फिर यहाँ पुट करोगे पावर में। हाँ, इस इक्वेशन में जो इक्वेशन 1 यहाँ पर आया था प्रूफ होके, ये कंक्लूजन है यहाँ पे, ये स्टेप ऑफ प्रूफिंग है। तो पावर का जो वैल्यू लाओगे, आई स्क्वायर आर कैसे आएगा, पावर है, आई है, वी स्क्वायर टू आई इंटू आर है, तो कितना आ गया, आई स्क्वायर इंटू आर। देखो यहाँ पर पावर स्क्वायर टू आई स्क्वायर आर आ गया, ये स्टेप नंबर 2 का प्रूफ हो गया, ये इसको भी प्रूफ का स्टेप मान लो। एक चीज और, करंट का वैल्यू रखो, आई का मतलब क्या होता है, वी बाई आर, इसको पुट करो इक्वेशन 2 में, तो तुम्हारे पास पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। आई के जगह पर वी बाई आर रखो, आई स्क्वायर इसको भी करो, इसको भी करो, और आर रहने दो, एक आर कट जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा, वी स्क्वायर बाई आर। ये हो गया थर्ड स्टेप जो यहाँ पर दिया हुआ एनसीईआरटी में, यहाँ पर देखो। So how to prove the relation for electric power? What is the exact meaning of the electric power? The power rating means how much the electrical energy dissipated in the circuit and how the electrical energy is consumed per second in the electrical circuit is called power. तो ये बात का ध्यान रखना है, this term is called electric power. Power can be E by T, power can be written W by T, power can be expressed as Q into potential difference divided by time, and
charge by time is the current, so power is related with I into V, which is equation 1. And by utilizing Ohm's law, we once again applied for the resistance of the conductor V is equal to I into R. And we can once again write the P as I into IR, I square R. This is the proof of the second equation. Once again, by Ohm's law, we can write for current, and current is V by R. So once again, we can write in putting the value of the I, V square by R square times R. R cancel out, and we get the relation V square by R. So how to prove the relation? In terms of the potential difference and resistance for power, in terms of the current and resistance with the power, and in terms of the current and potential difference across the ends of the given resistor or conductor. तो इस तरह से ये ध्यान में रखते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर की, उसको वाट बोला जाता है। हाँ, कैपिटल डब्ल्यू, 1 वाट कहाँ से आएगा? 1 पोटेंशियल डिफरेंस पावर multiplied with the one amount of current, 1 ampere of current. So when 1 ampere of current across the resistor, when applied, the voltage across this end is 1 volt, then the power is said to be 1 watt. तो ये ध्यान में रखना है। SI definitions of the electric power is said to be 1 watt if 1 ampere of current flows when 1 volt of potential is applied across the ends. तो यूनिट ऑफ वाट इज वेरी स्मॉल, ध्यान में रखना है। प्रैक्टिकल यूनिट इज कॉल्ड किलोवाट। ये प्रैक्टिकल यूनिट है डे टू डे लाइफ में, और ये 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। आप ऐसे भी लिख सकते हो मैथमेटिकली इस तरह से, और ये टेबल को कन्वर्सन फॉर्मूला में करके ध्यान में रखना ये बात को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड द टाइम। देखो यहाँ पर एक एनर्जी का भी फॉर्मूला आ गया। पावर का फॉर्मूला ले लो E/T और एनर्जी लिख दो। एनर्जी इज रिटन एज पावर इनटू टाइम। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड वाट आवर। तो पावर है वाट, टाइम को आवर में रखा गया। 1 watt-hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. अगर 1 watt of power को यूज करेंगे 1 hour के लिए, तो एनर्जी क्या होगा? 1 watt-hour होगा। काफी यूजफुल वर्किंग फॉर्मूला है। कॉमर्शियल यूनिट का नाम भी जानना चाहिए ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच इज कॉल्ड किलोवाट-आवर। 1 kWh, इसको 1 यूनिट बोला जाता है। 1 kWh लाने का तरीका क्या है? हाँ, देखो, किलोवाट को 1000 वाट बोलते हैं, और 1 आवर का मतलब 36 सेकेंड होता है टाइम। तो जब इसको अरेंज करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड आ जाएगा। इसको 3.6 10⁻6 जूल भी बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्सन फॉर्मूला है। हाँ, ये कंसेप्चुअल बात को ध्यान में रखना है। people think that Many people think that electrons are consumed in the electric circuit. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया। दिस इज रॉन्ग। We pay the electricity board or electric company to provide energy to move electrons through the electrical gadget like electric bulbs, fans and engines. जितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना है उसी के लिए हमको बिजली का बिल देना पड़ता है। We pay for the energy that we use. तो इलेक्ट्रॉन्स का यूटिलाइजेशन एंड अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव थ्रू द डिफरेंट डिवाइसेस इन द होम. We use to pay for the consumption of energy whenever it is allowed to pass through it. Electric bulb का केस है. One problem is for you. An electric bulb is connected to 220 volt generator. कोई बल्ब है, ये बल्ब को हाँ कनेक्ट किया गया है किसी जनरेटर से। चलो सोर्स दे दो इसको, ठीक है, इसको सोर्स दे दिए, 220 वोल्ट का सोर्स दे दी। द करेंट इज 0.5 एम्पियर। इसमें देखो करंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? इस बल्ब की पावर क्या होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। कैसे लाओगे पावर?
पावर लाने का क्या तरीका है? वोल्ट टोटल दिया हुआ है, इसको निकालो पहले, कितना सोर्स है, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है ये भी देखो, बल्ब की क्या पावर रेटिंग है, रेसिस्टेंस से डिसाइड होगा ना कि कितना कंजम्पशन होगा, रेसिस्टेंस निकाल लो ओम्स लॉ से। ठीक है, बाय ओम्स लॉ आर कैसे लिखते हो? आर का लाने का तरीका क्या है? V इक्वल टू आई इंटू आर होता था, तो आर बराबर क्या होगा, बी बाई आई। तो अगर आप टोटल 220 को 0.50 से डिवाइड कर दोगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू भी आ जाएगी, आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 220 डिवाइडेड बाई 100 बाई 50, कट कर दो, कितना आ गया, 2 2 जा 4, हाँ ये ओम आ गया। बल्ब की रेसिस्टेंस से पता चलेगा। पावर लाने का तरीका, पावर कैसे लाओगे, जितना रेसिस्टेंस है V स्क्वायर बाई आर भी तो कर सकते हो, नहीं, और V स्क्वायर में कितना है वैल्यू, 220, रेसिस्टेंस कितना लाए हो, 440, कट कर दो, कट कर दो, डायरेक्ट 22 का 2 से काट दो, कितना बार में आएगा, हाँ 110 वाट, 110 वाट।